Hello students, today is your revision class of chapter number 1, that is crop production and management. In this class we will talk about the important points of this chapter. Okay, let's start. देखो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ crop production and management. ठीक है, सब तो पहले अपन को की पता होना चाहिए what is crop. सो व्हाट इज़ क्रॉप प्लांट या क्रॉप. ठीक है, देखो प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन अ वास्ट फील्ड. ਜਿਹੜੇ प्लांट्स की है लार्ज स्केल ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन द लार्ज अमाउंट्स. प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर नोन एज द क्रॉप प्लांट्स. देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ प्लांट्स ठीक है फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्रॉप प्लांट्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ क्रॉप प्लांट्स ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ क्रॉप्स ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ टाइप्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ठीक है, ਨੈਕਸਟ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा क्रॉप सीजनस इन इंडिया. इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋ क्रॉप सीजनस ਨੇ. ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਰੀਫ क्रॉप्स ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬੀ क्रॉप्स. ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬੀ क्रॉप्स ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਖਾਰੀਫ क्रॉप्स ਨੇ. देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ. ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਨੇ 4 वर्ड्स ने 1 2 3 4. ठीक है, रब्बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4. ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬੀ क्रॉप्स ਨੇ. ठीक है, ਰੱਬੀ क्रॉप्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਸੋਨ ਇਨ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਇਨ ਮਾਰਚ. ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਵੀਟ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੀ ਮਸਟਰਡ ਬੇਰਲੀ. ठीक है, ये सारे की है बेरले. ठीक है, ये सारे की रब्बी क्रॉप्स ने. देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹਾੜੀ ਰੱਬੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਣੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੌਣੀ ਹੈ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਘਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 2 3 4 5 ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਅੱਖਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸੌਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਰੀਫ क्रॉप्स. ਖਾਰੀਫ क्रॉप्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਸੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਫਰਮ ਜੂਨ ਟੂ ਜੁਲਾਈ. ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸੌਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੈਡੀ ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, देखो खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन दी मॉनसून सीजन जून टू जुलाई. हम जून टू जुलाई है ना एज दे रिक्वायर दी मोर वाटर क्योंकि इन्होंने की ज़्यादा पानी की जरूरत होंगी है. तो हारवैसटिंग पीरियड यदा कितना है सैप्टेंबर एंड अक्टूबर. ठीक है, पैडी हो गया. ठीक है, मेज़ कॉटन ग्राउंडनट सोयाबीन ये सारी की खरीफ क्रॉप्स ने. ठीक है, सारे आप अपने आले दुआले तुसीं हुण ऑब्जर्व करते होंगे चैप्टर दे विच सारा उही है. ठीक है, अगर तुसीं ध्यान नाल पढ़ो तो ये चैप्टर कोई औखा नहीं हैगा. ठीक है, नैक्सट है बेसिक प्रैक्टिसिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. देखो बेसिक प्रैक्टिस ये की हैगी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. देखो सब तो पहले आपको पता है जो भी आप कोई क्रॉप उगाने. ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप की करना पहले तो अपने को की है गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल होनी चाहिए है. ठीक है, फिर सीड्स भी हैल्दी होने चाहिए है. फिर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर का ध्यान रखना. ठीक है, आप वीड्स तो उन्होंने प्रोटैक्ट करवाना. ठीक है, ये सारा आप ध्यान रखना. ये देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 8 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 8 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ. ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਸੀਡਸ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨਿਓਰ ਤੇ ਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨ पूरे कर सकन. ठीक है, फिर इरीगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पानी की सिंचाई का ध्यान रखना. ठीक है, उन्होंने आप पानी वगैरह देना किवें देना वो किहड़े मैथड्स ने. फिर वीडिंग है. वीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ भी अनडिजायरेबल प्लांट्स ने. ठीक है, उन्होंने आप रिमूव करना उस प्रोसैस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ वीडिंग ਕਹਿੰਦੇ. ठीक है, हारवैसटिंग थ्रैशिंग विनोइंग. हारवैसटिंग की उन्होंने कटाई करन दा. ठीक है, उन्होंने की अलग करन दा. ये सारे प्रोसैस ने. ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन एंड दी स्टोरेज. फिर उन्होंने स्टोर करके रखना प्रिजर्व करके रखना किवें रखना. ठीक है, दैन की क्रॉप रोटेशन है. ठीक है, ये सारे की ये की स्टैप्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे. सब तो पहले की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ प्रिपेयर करांगे ਆਪਾਂ. देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पता है भी ਜਿਹੜਾ सॉइल कंटेन्स दी मिनरल्स वाटर एंड एयर. देखो सॉइल
ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਆਰ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਏਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। देखो सॉइल ਨੂੰ करना है द प्रोसैस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग दी सॉइल यूजिंग अ प्लो इज कॉल्ड दी प्लोइंग और टिलिंग। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਹਾਰਡ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਰਮ ਤੇ ਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪਲੋ ਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਅਲਾਓ ਦੀ ਡੀਪਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਮਿਕਸ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰ ਵਿਦ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨਿਓਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਮਿੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਓਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਅਰ ਇਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦੀ ਰੂਟ ਸੈਲਸ ਟੂ ਰਿਸਪਾਇਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਅਰ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਸੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੂਟ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵਰਮਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਦੇਅਰ ਬਾਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਰਮਸ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਮੂਵਸ ਦੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀਡਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲੋਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੋਲੀ ਲੂਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਡੀਪ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਾ ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਜਾਂ ਅਰਥਵਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਇੰਗ ਕੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਆਇਰਨ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਾਲ ਦੀ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਲੋ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਤਿਰਛਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਅ ਵੁਡਨ ਲੌਗ। ਇਹ ਕਿ ਵੁਡਨ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਪਲੋ ਸ਼ਾਫਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੋ ਸ਼ਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ ਡਰੋਨ ਬਾਈ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਬੁਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਬੁਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਲੋ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਚੀਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਿੰਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਟੂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੋ ਕੀ ਆ
इट इज़ ऑल्सो यूजड फॉर टिलिंग और रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। ये भी है टिलिंग पुट्टन दे लई, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया जाता है। इट कंप्राइजेज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन विद द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट आयरन फिक्सड ऑन इट्स वन एंड इट इज़ पुल्ड बाय एन एनीमल। देखो ये भी सेम होंगे, ये की होंगे ये थोड़ा कि ये जोड़ा अपना प्लॉ होंगे, ठीक है, वो कि इतों की थोड़ा कि शार्प होंगे, ठीक है, बट ये कि ब्रॉड होंगे, ठीक है, बेंट होंगे, बेंट प्लेट ऑफ आयरन ये कि आयरन फिक्स किया जाता, ठीक है, थोड़ा कि चौड़ाई दे विच हुंदा, ठीक है, ब्रॉड होंगे ये, ठीक है। बाकी इनू भी क्या एनीमल्स द्वारा की पुल करके की टिलिंग की जाती है सॉइल की, ठीक है। नैक्सट है कल्टीवेटर। हुण की मॉडर्न जिहड़ा एरा, ठीक है, ये की कल्टीवेटर के नाल की टिलिंग की जाती है, ठीक है। देखो ये की होंदा प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स फॉर बेटर एफिशिएंसी, इट सेव्स द टाइम एंड द लेबर। ये कि टाइम नूं ते की लेबर की करता सेव करता, टाइम नूं सेव करता, ठीक है। ट्रैक्टर के पिछे हल बाउने आप अजकल के उसनूं की कहते कल्टीवेटर कहते, ठीक है। देखो जो प्लॉइंग है प्लॉ करना, ठीक है, आप करते हैं हल बाउने, वो क्या सॉइल पर भी डिपेंड करता है। देखो प्लॉ आर चूजन अकॉर्डिंग टू द सॉइल, जे कि मिट्टी की हार्ड होगी, ठीक है, इफ़ द सॉइल इज़ हार्ड द प्लॉ मस्ट हैव अ शार्प आयरन ब्लेड टू ब्रेक इट। फिर कि वह जो ब्लेड होगा आयरन ब्लेड वो की शार्प होना चाहिए जो मिट्टी की हार्ड है। वैन द सॉइल इज़ ड्राई इट ब्रेक्स इनटू द बिग चंक्स, जो सॉइल की ड्राई है तो उन्होंने की बिग चंक्स के ब्रेक कर देंगे, ठीक है, जो प्लॉ है, ठीक है। दीज हैव टू फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द क्लॉड क्रशर्स, ठीक है। आफ्टर द soil and the land has been plowed, the top soil may get eroded by the wind or the water। ये कुछ नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस द सॉइल इज़ लेबल्ड विद द वुडन लेवर और द प्लैंक्स, ठीक है। फिर की करते हैं इनू की है एक वुडन लेबर होंगे, ठीक है, उन्होंने सारी की मिट्टी नूं प्लेन करन दे विच की किहदा इस्तेमाल किया जाता है वुडन लेबर का, ठीक है। नैक्सट हैगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ बॉम है जिहड़ी ये भी हैल्प करते हैं मिट्टी नूं पोली बनाउण दे विच, ठीक है। तो इन्हां नूं की कहंदे फार्मर फ्रेंड्स भी कहंदे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अर्थ बॉम्स ऑल्सो टर्न एंड लूजन द सॉइल सो दे आर कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नैक्सट हैगा आप देखो प्लॉ कर लिया, ठीक है, प्रिपेयर कर ली सॉइल, हुण आप की सीड सिलेक्ट करनी है, सीड्स भी की होने चाहिए हैल्दी होनी चाहिए फिर ही वो ग्रो करनगे, ठीक है। ये सारा कि ये दिता हुआ है। आफ्टर द लैंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है, सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग, सीड्स ऑफ हाई ईल्डिंग वेराइटी शुड बी सिलेक्टेड। सीड्स आप की वो सिलेक्ट करने हैं जोड़े कि हाई ईल्डिंग जोड़े आपू की ज़्यादा अमाउंट के क्रॉप्स देन, ठीक है। सो सीड्स टू बी सोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड ऑल्सो रेजिस्टेंट टू डिजीज़। देखो सीड्स की बीमारियों तो मुक्त होने चाहिए, वो सीड्स अपन सिलेक्ट करने चाहिए, हैल्दी सीड्स सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ कि यही दिता है, ठीक है। नैक्सट है सोइंग सीड्स। फिर आप सीड्स सिलेक्ट कर ले, हुण आप सीड्स की करनी है बिजाई करनी है, ठीक है। बिजाई करने के लिए आपू ये चार मैथड्स ने कि मैनुअल सोइंग, बाय यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स, बाय सीड ड्रिल मैथड, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये सारे के चार मैथड्स ने जिहड़ी कि इंपॉर्टेंट मैथड है पेपर के पूछे जाते हैं, ठीक है। सोइंग सीड्स देखो मैनुअल सोइंग की होंगे इन दिस प्रोसैस द सीड्स आर स्प्रिंकल्ड विद द हैंड इनटू द सॉइल, सीड्स सोन इन दिस मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली विच मे रिजल्ट इन ओवरग्रोइंग। देखो ये की करता आ देखो कि मैनुअल सोइंग की पिक्चर है, ये की करते फार्मर्स जोड़े सीड्स उनके स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़का करते हैं, ठीक है। जो छिड़का करते हैं तो सीड्स की होंगे वो कि अनडिस्टर्बड मैनर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। कोई कितने डिग जाता कोई कितने, तो वो की ओवरग्रोइंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये मैथड की ज़्यादा वधिया नहीं है। नैक्सट मैथड है बाय यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल की पुराने जमाने जोड़ा आप यूज़ करते थे, आ देखो आ कि ट्रेडिशनल सीड्स की टूल की पिक्चर है, ठीक है। ये की है द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, एक ये फनल शेप की होंगी है, ठीक है। इन विच सीड्स आर फिल टू पास थ्रू 2 or 3 पाइप्स विद द शार्प एंड्स दैट पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। देखो इत्थे की करते हैं सीड्स की ये पाते हैं, ठीक है। एक फनल है, फनल की जो सीड्स पाते हैं, ठीक है। एक जड़ियाँ आ पाइप्स ने डिफरेंट पाइप्स के होके, ठीक है, इत्थों की करता जमीन के चला जाता तो उत्थे की सीड्स की ग्रो करते हैं, ठीक है। नैक्सट है सीड ड्रिल मैथड।
सीड ड्रिल मैथड की मॉडर्न मैथड है, ये की करते सेम प्रोसैस है बट ये ट्रैक्टर की हैल्प ना करते, ठीक है। ये मशीन थोड़ी वड्डी हो जाती है, ठीक है। तो ये पाइप्स भी की ज़्यादा है। देखो सीड ड्रिल मैथड की है, सीड ड्रिल मैथड हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच आर कनैक्टेड एट द टॉप विद द फनल। ये देखो कि फनल है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स ने, द सीड्स टू बी सोन आर पुट इनटू द फनल एंड सीड ड्रिल इज टाइड एट द बैक ऑफ द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो, ठीक है। ट्रैक्टर की बैक साइड पर होंगे। तो ये ये ज़्यादा की वधिया मैथड है, ठीक है। इट इंश्योर्स द सोइंग ऑफ सीड्स एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ एंड दैट सीड्स आर कवर्ड प्रॉपरली विद द सॉइल। देखो ये की होंगे, ये सारी सीड्स की प्रॉपर डिस्टेंस से लगते हैं। देखो ये जो सीड्स जाएंगे तो इन्होंने की सारे की प्रॉपर डिस्टेंस होगा, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स एंड एनहांसिस द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये की करते हैं सीड्स नूं डैप्थ डूंघाई तक जाने भी हैल्प करते हैं, ठीक है। फिर कि सीड्स की प्रॉपरली कवर हो जाते हैं कि सॉइल के नाल, ठीक है। इस मैथड के नाल जिहड़े कि बर्ड्स वगैरह की सीड्स नूं डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्टिविटी नूं भी की करते इनहांस कर देंगे, ठीक है। ये मैथड की सब तो की वधिया मैथड है। नैक्सट है ट्रांसप्लांटेशन, ये सिर्फ पैडी के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन मैथड इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स लाइक पैडी, ठीक है। पैडी के तरह जोड़े क्रॉप्स ने उन्होंने लिए यूज़ किया जाता। हुण की सीजन की पैडी का सीजन है, ठीक है। हुण आपां सारे की देखते हैं कि आपां की लेबर की हैल्प नाल की पैडी नूं की फील्ड विच की ग्रो करवाने हैं, ठीक है। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरी एंड वैन दे जर्मीनेट स्मॉल प्लांटेड सीडलिंग आर डायरैक्टली प्लांटेड इन द फील्ड। देखो आप पहला की नर्सरी के तैयार करते हैं, जो सीड्स के प्लांट के कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जर्मीनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। फिर आप की करते हैं उन्होंने की फील्ड के लेबरस की हैल्प नाल की करते हैं उगाने हैं, ठीक है। देखो ट्रांसप्लांटेशन की है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांटेशन। एक नर्सरी तो जोड़े मतलब कि आप प्लांट्स लियाते सी उन्होंने कि मेन फील्ड विच लगाने वाले प्रोसैस नूं की कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन प्रोसैस, ठीक है। इट अलाउज द बेटर पेनीट्रेशन टू द ऑफ द रूट्स इन द सॉइल एंड बेटर शूट डिवेलपमेंट, ठीक है। ये की करता है कि बेटर जी कि सीड्स की जोड़े रूट्स ने, ठीक है, प्लांट्स के वो डूंघाई तक चंगी तरह जा सकन, इसलिए इस मैथड नूं की यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैक्सट है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। ये की करते हैं हुण आप देखो सॉइल प्रिपेयर कर ली तो सीड भी कर सोइंग ऑफ सीड्स भी बीजता है ना। हुण आप उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ठीक है, ताकि वो ईजिली की ग्रो कर सके, ठीक है। ये की है प्लांट्स गेट देयर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अपन पता है जो प्लांट्स ने वो की सॉइल तो की अपनी न्यूट्रिएंट्स लेंदे हैं, ठीक है। तो उन्होंने की ऑब्जर्व करते हैं तो फिर की वो उन्होंने ग्रो करने की हैल्प करते हैं, ठीक है। ये फिर की करना आप कि हुण मैन्योर है, ठीक है। मैन्योर तो की फर्टिलाइजर्स दो तरह के की है कैमिकल्स, एक कि मैन्योर तो फर्टिलाइजर्स दो ने जिहड़ियां इन्हूं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दी सॉइल नूं, ठीक है। देखो ये की मैन्योर है, मैन्योर जी अपनी की खाद होंगी है जी आप घर के तैयार करते हैं, ठीक है। उन्होंने की कहते मैन्योर कहते हैं। मैन्योर किवें तैयार की जाती है? मैन्योर इज़ डीकंपोज्ड प्लांट और दी एनीमल वेस्ट। एक जोड़े एनीमल वेस्ट होंगे काउ डंग वगैरह होंगे जी भी प्लांट्स होंगे जो किचन वेस्ट होंगे, ठीक है, उन्होंने सारे कि इकट्ठा करके की है काफ़ी टाइम रखते हैं, ठीक है। तो फिर वो खाद के कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इट इज़ अ ऑर्गेनिक सबसटेंस एज इट इज़ obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनीमल। द डीकंपोजिशन टेक्स बाय द मीनस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी भी की है बैक्टीरिया ਜਾਂ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्होंने खाद कन्वर्ट करने की हैल्प करते हैं, ठीक है। नैक्सट है ये की इंपॉर्टेंट टाइप्स की है मैन्योर दियाँ। मैन्योर दी की है फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, सी मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, ये सारिया की है टाइप्स ने, ठीक है। नैक्सट हैगा कंपोस्ट। ये सारे की है फार्म यार्ड मैन्योर है जी किमें तैयार करते हैं या आप घरे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उही सेम मैथड काउ डंग वगैरह के नाल की तैयार करते हैं, ठीक है। ग्रीन मैन्योर है जी वो किमें तैयार करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और प्लोइंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनटू द सॉइल आर पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज द सॉइल, ठीक है। बस एक ही टाइप्स ने
ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ यूरिया, अमोनीयम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ठीक है, ये सारे की फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨऑर्गेनिक इन नेचर। देखो ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ऑर्गेनिक इन नेचर ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟਾइप्स ਨੇ, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड कैमिकल फर्टिलाइजर दो आर मोर कंसनट्रेटेड एंड एफिशिएंट। देखो इनू आप घरे तैयार कर सकते सी, ठीक है, फार्म यार्ड दे विच अपने घर दे विच तैयार कर सकते हैं, बट इनू की फैक्ट्रीज़ दे विच तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैमिकल्स दे नाल इनू की तैयार किया जाता है, ठीक है। देखो जी मैन्योर होंगी है ना, मैन्योर दे विच की सारे न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। बट फर्टिलाइजर्स की होंगे जी किसी एक न्यूट्रेंट की कमी हुई, देखो जिमें कि नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, अपने कोई भी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो आप फर्टिलाइजर उस हिसाब नाल की जिमें कि NPK, देखो नाइट्रोजन, पोटाशियम, ये सारा की फॉस्फेरस, फिर आप की ये वाली फर्टिलाइजर दे सकते हैं क्योंकि वो की प्रॉपर न्यूट्रेंट की फुलफिल हो सके, ठीक है। नैक्सट है मैन्योर इज़ कंसीडर बैटर दैन फर्टिलाइजर्स। एक क्यों मैन्योर नूं की वधिया मन्निया जाता है फर्टिलाइजर्स तो, ठीक है। क्यों मन्निया जाता? देखो इट एनहांसिस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। एक जी वाटर नूं होल्ड करने की कैपेसिटी नूं इनक्रीज़ करती है, ठीक है, फर्टिलिटी नूं इनक्रीज़ करती है, ठीक है। एक ईको फ्रेंडली है, ठीक है, तो एक चीप तो पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। ये सारे की है एडवांटेजेस ने, ठीक है। नैक्सट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की है? क्रॉप रोटेशन के विच की एक अनदर मैथड है टू रिप्लेनिश दी सॉयल विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक ही क्रॉप रोटेशन की एक अनदर मैथड है जिहड़ा की है सॉयल नूं की न्यूट्रिएंट रिच बना दिंदा है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन दे विच की हुंदा जदों आपां की इक्को प्लांट नूं की सेम लैंड दे विच की बार बार उगाई जाने, ठीक है, उहदे विच की एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट दी की कमी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट दी, ठीक है। इसलिए आपां की करदे क्रॉप रोटेशन की है आपां नूं की इसलिए अपन की अल्टरनेटिव मैथड की अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इक्को फसल नूं बार बार नहीं उगाना चाहिए, ठीक है। अपन की अल्टरनेटिव क्रॉप्स नूं की उगाना चाहिए, ठीक है। जिवें हुण की देखो ये इन क्रॉप रोटेशन फार्मर्स आर इंकरेज टू ग्रो वन पल्स क्रॉप बिटवीन दी 2 सीरियल क्रॉप्स। कोई भी 2 सीरियल क्रॉप्स नहीं, ठीक है, वो किसी होर पल्स में उगाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सके, ठीक है। अ पर्टिकुलर क्रॉप रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ग्रोइंग इट आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड मेक्स द सॉयल डेफिशिएंट ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, ठीक है। टू रिप्लेनिश द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट डिफरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन अल्टरनेटिवली। जिवें कि लेगुमिनस प्लांट है, ठीक है, ये बहुत ही की है रिच इन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इनू की उगाना चाहिए कोई भी 2 क्रॉप्स दे विच की लेगुमिनस प्लांट्स नूं उगाना चाहिए, ठीक है, ताकि उहदे विच की कोई भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो सके, ठीक है। देखो ये डिफरेंस है, ये भी की इंपॉर्टेंट है। देखो ये फर्टिलाइजर्स ते मैन्योर्स दे आर इनऑर्गेनिक। आप हुणे पढ़िया कि फर्टिलाइजर्स ने जिहड़ी कि फैक्ट्रीज दे विच प्रिपेयर करे जाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कैमिकल्स, ठीक है। इसलिए इन्होंने कि दे आर इनऑर्गेनिक कैमिकल्स प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, बट एक ही नैचुरल सबसटेंसेस नहीं, ठीक है। दे आर नैचुरल सबसटेंसेस obtained by the decomposition of cattle dung, human waste, plant residue prepared in the field। आप घरे तैयार कर सकते हैं मैन्योर नूं, ठीक है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। एक जी सॉयल है उन्होंने क्या ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करते, बट दे आर लॉट ऑफ ह्यूमस इन दी, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन दी सॉयल, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर रिच इन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है। एक ही है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम देखिए न्यूट्रिएंट्स ये की ज़्यादा होंगे, दे आर लैस इन सच न्यूट्रिएंट्स, ये क्या इस न्यूट्रिएंट्स की क्या कमी होंगी है, ठीक है। नैक्सट है इरीगेशन, ठीक है। हुण आपां की कीता सॉइल नूं प्रिपेयर किया, सीड लगाया, ठीक है, उन्होंने की है मैन्योर या फर्टिलाइजर्स दिते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स की है सॉइल की है फुलफिल हो सकन, ठीक है। नैक्सट है इरीगेशन। हुण आपां की उन्होंने की पानी की रिक्वायरमेंट नूं की पूरा करना, ठीक है, सॉइल की। देखो ये की रैगूलर, देखो इरीगेशन की डेफिनेशन की है द रैगूलर वाटरिंग ऑफ द फील्ड इज़ नैसेसरी फॉर द हेल्दी क्रॉप्स। वाटर सो प्रोवाइडेड टू द क्रॉप एट डिफरेंट टाइमिंग इज़ कॉल्ड द इरीगेशन। आपां नूं की कोई भी फील्ड है ना उन्होंने की
ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੀ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ट्रेडिशनल मैथड भी नहीं कि मॉडर्न मैथड है। ट्रेडिशनल मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरीगेशन की है चेन पंप, मोट, डेकली, राहट, ये सारे की इरीगेशन ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरीगेशन ने, ठीक है। बट दीज डेज पंप आर नॉर्मली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, हुण तां आपां की है पंप वगैरह यूज़ करते हैं तो वाटर नूं की लिफ्ट करन दे लई, ठीक है। मॉडर्न मैथड्स जिहड़े ने वो किहड़े आ, मॉडर्न मैथड्स देखो स्प्रिंकल मैथड ते ड्रिप मैथड, ठीक है। स्प्रिंकल मैथड्स की है, इट फाइंड मोर यूटिलिटी ईवन वैन दी इनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये आपां नूं कित्थे है जित्थे कि आपां नूं ज़्यादा पानी की की ज़रूरत ने, जित्थे कि ज़्यादा पानी नहीं हुंदा, ठीक है, उत्थे आपां नूं की इस मैथड की ज़रूरत है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, ठीक है। देखो इहदे विच की हुंदा है, इत्थे की नोजल हुंदी है, ठीक है, एक ये रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट जो भी ये प्रैशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये रोटेट करती है नोजल है जी टॉप के जो रोटेट करती है तो वाटर की है मीह की तरह की स्प्रिंकल होंगे, ठीक है। अपन लगता जिवें मीह आता होंगे, ठीक है। ये यही दिता होया इट फाइंड इट कंसिस्ट ऑफ अ परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर द प्रैशर थ्रू द मेन पाइप बाय द मीनस ऑफ द पंप, इट स्प्रिंकल्ड बाय द रोटेटिंग नोजल, इट लुक्स एज इफ इट इज़ रेनिंग, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये नो जो भी ये प्रैशर अप्लाई करते हैं तो जी नोजल है ये रोटेट करती है, रोटेट करने नाल पानी की है सारे पासे की मीह की तरह की स्प्रिंकल हो जाता है, ठीक है। नैक्सट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रिकल इरीगेशन, इनू ट्रिकल इरीगेशन भी कहते हैं, ठीक है। हेयर द वाटर फॉल्स बाय ड्रॉप टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ये की करता देखो ड्रिप मैथड है, ठीक है। तो ये कि जो पानी है कि बूंद बूंद करके कि रूट्स में दिता जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम, इसलिए इनू ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर वाटरिंग फ्रूट्स गार्डनस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ पोर, इनू आपां की जिवें कि आपां घर दे विच गार्डन जां फ्रूट्स प्लांट्स हुंदे जिन्हां नूं कि पानी की की घट ज़रूरत है, ठीक है, उत्थे आपां कि इस प्रोसैस नूं की यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ड्रिप सिस्टम इज़ अ बेटर मैनेजर टू ऑफ वाटर, द ड्रिप विल स्लोली पेनीट्रेट द सॉयल, है ना, सेविंग द वाटर। देखो ये जो बूंद बूंद करके पानी जाता है तो ये की है पानी की वेस्टेज नहीं होंगी, ठीक है। जेह्ड़ा स्प्रिंकल कैन डिलीवर टू मच वाटर फॉर द सॉयल टू होल्ड और रन ऑफ द वाटर, ये की है स्प्रिंकल मैथड की है बहुत ज़्यादा पानी है जोड़ा कि एवें फ्लो हो जाता, ठीक है, वेस्टेज होंगी है, ठीक है, पानी की। द ड्रिप कैन बी फोकस्ड एग्जैक्टली वेयर दे नीड टू गो, जो ड्रिप मैथड है ये सिर्फ कि रूट्स के ही जाता है जिथे उन्होंने की ज़रूरत होंगी है, ठीक है। फंगल डिजीज़ आर लैस लाइकली टू ग्रो इन द सॉयल, देखो जो कि पानी एक थां ते कि बहुत ज़्यादा आप पानी दे दें उत्थे कि फंगल का भी फंगल इन्फैक्शन का भी कि डर होंगे, ठीक है, इसलिए कि फंगल डिजीज़ तो भी बचाते हैं, ठीक है, ड्रिप मैथड है। द ग्राउंड इज़ नॉट सोक्ड एंड देयर इज़ लैस लाइकली, देख सॉयल इरोजन के भी हैल्प करता है, जो लॉट ऑफ वाटर फ्लो करूगा, ठीक है, वो की मिट्टी भी बह जाती है तो जी कि सॉयल इरोजन की करती है इनक्रीज़ करती है, बट इस मैथड के की है सॉयल इरोजन भी की हो जाती है लैस हो जाती है, ठीक है। नैक्सट है गेटिंग रिड ऑफ वीड्स, ठीक है। हुण आपां की कीता ये की कीता हुण आपां की जिहड़े अनडिजायरेबल प्लांट्स ने, ठीक है, उन्होंने की करना है रिमूव करना है, ठीक है। देखो वीड्स किहनूं कहंदे आ, द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड द वीड्स, उन्होंने की कहंदे वीड्स कहंदे, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स इज़ नोन एज द बीडिंग, तो जिहड़े प्रोसैस नाल आपां की अनडिजायरेबल प्लांट्स नूं रिमूव करदे उस प्रोसैस नूं की कहंदे वीडिंग कहंदे, ठीक है। वीडिंग के की है किहड़े मैथड्स ने, ठीक है। वेज टू रिमूव दी वीड्स, ठीक है, सब तो पहले की टिलिंग करनी है, आप मिट्टी नूं की है पुट्टना है, ठीक है, पुट्टन दे नाल की है जिहड़े भी अनडिजायरेबल प्लांट्स ने वो भी की खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस वीड्स, ठीक है। दूसरा हैगा विद द हैल्प ऑफ ट्रॉवल, देखो खुरपी वगैरह होंदी है जे अपने की
कोई छोटी लैंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਰਪੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰੋ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦੀ ਵੀਡਸ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰਟਨ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡਸ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 2,4-DMCPA, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਫਸਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਡ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਡਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿੱਕਲ। ਇਹ ਸਿੱਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ। ਆਫਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਔਰ ਅ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੀਡਸ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬਿਨੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨੋਇੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦ ਸੀਡਸ ਬੀਂਗ ਹੈਵੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡਸ ਕੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਫਟ ਇਜ਼ ਬਲੋਨ ਲਾਈਟ ਲਿਟਲ ਫਾਰਦਰ ਅਵੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵਿੰਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਵਿਨੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਸਟੋਰੇਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਆਰ ਸੀਵਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਪੈਬਲ। ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਰਾਈਡ ਅਪ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੋਰ ਇਨ ਦੀ ਜੂਟ ਬੈਗਸ। ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਘਰੇ ਢੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਟ ਹੋਮ ਦ ਡਰਾਈਡ ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਆਰ ਪੁੱਟ ਵਾਈਲ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀ ਫੂਡਸ। ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਗਿਵਨ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਲਸ। ਅਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਪੇਸ। ਦੇਖੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਸਾਈਡਸ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਹਾਂਸਡ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹਾਈ ਈਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈ ਈਲਡ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈ ਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਪੈਸਟ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਚਿਓਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੋਰਟਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਗਿਵ ਹਾਇਰ ਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, it involves the transfer of plant varieties with the desired character from one plant to another or transfer in the parts of the world, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਥਰ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਵਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਥਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਥਰ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਫਲਾਵਰ ਆਫ ਵਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸਟਿਗਮਾ ਆਫ ਦੀ ਐਮੈਸਕੂਲੇਟਿਡ ਫਲਾਵਰਸ, these flowers are then covered, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। these flowers are then covered with the plastic to prevent the pollen from the other sources, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। the seeds formed in such flowers are hybrid and give rise to hybrid plants, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 1960s ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਲਚਰ, ਦੇਖੋ 1960s ਤੇ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਗੋਲਡਨ ਈਰਾ ਔਰ ਕਹਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਕਮ ਪੋਸੀਬਲ ਬਾਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਆਫ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਫਾਰਮਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਐਨਹਾਂਸਡ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੈਟ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਬਿਕਮ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, यानी कि ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ठीक है, इन्ना ही करन दी लोड़ है थोनू ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच। आर कंट्री बिकेम सैल्फ सफिशिएंट इन दी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अपनी कंट्री है जिहड़ी वो सैल्फ सफिशिएंट होगी। ठीक है, अ बफर स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस कुड बी एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री टू मीट दी शॉर्टफॉल ऑफ द फ्यूचर। देखो आपां की ज़्यादा आपां नूं की क्रॉप प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा होई कि आपां नूं की इनू की स्टोर करके रख सकते हैं कि फ्यूचर दे विच कोई भी अपन को प्रॉब्लम आती है तो फ्यूचर दे विच आपां इनू की यूज़ कर सकिए। ठीक है, नैक्सट है ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्रूव दी इकनॉमिक कंडीशन ऑफ आर फार्मर्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपने फार्मर्स की कंडीशनस नू भी की करता इंप्रूव किया। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ नाउ रिगार्डिड एज दी इंडस्ट्री। हुण अजकल की है एग्रीकल्चर नू की है कि इंडस्ट्री के तौर पर की है मन्निया गया। ठीक है, ये सारा कि इत्थे की बस इन्ना ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर दे विच। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा ये हैगा हरबेरियम ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये की है कोई ज़रूरी नहीं हैगा, इनू करन दी ज़रूरत नहीं। ठीक है, इत्थे की अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये विच की तुहाडे सारे क्वेश्चनस कवर हो गए। ठीक है, देखो द सारे क्वेश्चनस कवर दी वट इज़ क्रॉप ये आप कर चुके हैं, वट आर खारीफ क्रॉप्स ये भी हो गया, रब्बी क्रॉप्स भी हो गया। ठीक है, 3 टूल्स किहड़े सीगे, प्लॉ हो ते कल्टीवेटर, ये सारे की है यूज़ टूल्स। ठीक है, हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट मैन्योर, ये कि आपां की है एक डिफरेंस है। ठीक है, वो किया सी फर्टिलाइजर्स की होंगे इनऑर्गेनिक तो मैन्योर्स की ऑर्गेनिक सबसटांसिस होंगे। फर्टिलाइजर्स नूं आपां की है फैक्टरीज दे विच की तैयार करते हैं तो इनू की अपने फार्म यार्ड दे विच की तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे की ये डिफरेंस ने। ठीक है, नैक्सट है आंसर इन डिटेल्स। देखो प्लॉइंग आपां कीती है तो उहदे जिहड़ा भी प्रोसैस है, ठीक है, लूजनिंग दी सॉइल्स है ना, उन्होंने की कहते प्लॉइंग कहते तो एडवांटेज आपां की पिछे डिस्कस किए। ठीक है, वट आर वीड्स, जिहड़े भी अनडिजायरेबल प्लांट्स ने उन्होंने आपां की वीड्स कहने हैं। ठीक है, हाउ दे आर रिमूवड, किहड़े मैथड सीगे, खुरपी दे नाल कर सकते हैं। ठीक है, हैरो दे नाल आपां की रिमूव कर सकते हैं, जां आपां की वीडिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव दी वीड्स। ठीक है, नैक्सट है वट आर द बेनीफिट्स ऑफ सोइंग सीड्स यूजिंग अ ड्रिल मैथड। ड्रिल सीड मैथड के नाल की हुंदा जिहड़े भी अपने क्रॉप्स हुंदे कि प्रॉपर डिस्टेंस दे विच की उगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे की है बेनीफिट्स ने। ठीक है, वट इज़ द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन भी आपां कीती है। नैक्सट है वाई इज़ द ड्रिप इरीगेशन द बेस्ट मैथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन के बेस्ट मैथड क्यों है, क्योंकि एक ही करता वाटर की वेस्टेज नहीं होने देता। ठीक है, तो ये सॉयल इरोजन भी की करता लैस करता। ठीक है, ये सारे की एडवांटेज ने। ठीक है, हाउ वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन अचीवड, ये आप हुणे कीता ते किहड़ा साइंटिस्ट सीगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, देखो तुहाडे की पेपर दे विच सारी एक्सरसाइज आऊगी। ठीक है, जिहड़ी भी MCQs ने, फिल इन द ब्लैंक्स ने। ठीक है, ये 1 वर्ड ने, नेम दी फॉलोइंग, ये सारी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनस की है सारे कवर होणगे तुहाडे की है एग्जाम्स दे विच। ठीक है, कल नूं की है तुहाडा टेस्ट हैगा तो अपना की है प्रिपेयर करके रखना। ठीक है।